week we discussed one of the gifts that God gives us for His ministry. इसी बार हमने देखा था परमेश्वर के एक दान को जो हमें अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर देते हैं, The gift of encouraging others. प्रोत्साहन, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का गिफ्ट दान। And there are 7 gifts mentioned in the 12th chapter of Romans verses 6 to 8. और 12 दान है जो कि रोमियो 12वां अध्याय 6 से 8 में हम पढ़ते हैं। And in the 8th verse is also one more gift mentioned, which is the gift of showing mercy. और उसमें हम एक दान और देखते हैं कि एक दूसरे पे दया दिखाने वाला। Now, showing mercy to others is a gift actually. और दया दिखाना दूसरों पे ये एक दान है। And Paul writes and says, if anyone has this gift, showing mercy, let him do it cheerfully. और पौलुस लिखता है कि अगर किसी के पास ये दान है एक दूसरे पे दया करने का, तो उसको बड़ी खुशी से करे इस दान काम को। Like encouraging others is a very good gift that God wants us to ask Him. Similarly, showing mercy is also a very good gift that God wants us to ask Him, because these gifts are for other people, and God is pleased when you ask for this gift. जब प्रोत्साहन जो है जब परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से जब दया की बात हम करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं किसी पे दया करूं, तो परमेश्वर बड़े खुश होते हैं और हमारे को इस चीज के लिए हमारी मदद करते हैं। Because these are selfless gifts. क्योंकि ये अपने स्वार्थी दान नहीं है, It's for other people through us. ये अपने दूसरे लोगों के लिए हमारे द्वारा से। Now, the word mercy in Greek is a word called elios. और ये जो दया शब्द है यूनानी भाषा में एलियोस शब्द से बना है। And that elios word is also translated as compassion. और उसका मतलब भी ये होता है कि किसी पे दया करना। And mercy and compassion are basically same. The Greek word is same, elios. और दया करना और कृपा करना ये एक ही शब्द है यूनानी भाषा में, और वो एलियोस शब्द है यूनानी भाषा में। And these qualities are very much part of the nature of God. और ये दोनों जो गुण हैं ये परमेश्वर के स्वभाव का एक हिस्सा है। We're all called to be godly people. हम सबको बुलाया गया कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग बने। Titus 1:1 says that the knowledge of the truth leads to godliness. और तीतुस 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर के ज्ञान की पहचान, सत्य की पहचान के अनुसार हम भक्ति के अनुसार भक्ति में बढ़ते हैं। So as we know the truth, that is Jesus, we become more and more godly, rather be like Jesus. और जब हम प्रभु को जानते हैं तो इन बातों में बढ़ते हैं, तो हम प्रभु की समानता में बदलते हैं, प्रभु के समान होते जाते हैं। Now, in the people of this world who do not know Jesus, in our country especially, they think that if they try to be godly, they will achieve the truth. और हमारे देश में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो भले काम करेंगे, परमेश्वर की तरह को उसकी सेवा में लगेंगे, तो शायद वो सच्चाई को पा जाएंगे। We cannot achieve the truth. We cannot work for the truth. We cannot achieve it, but we receive the truth as we open our hearts to Him. ये हम ये जो सच्चाई है, इसको हम कमा नहीं सकते, अपने काम से नहीं पा सकते, कुछ करके नहीं पा सकते, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। By our works, we never can achieve salvation. हम अपने कामों से कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। People don't know that, so they're trying to be godly, hoping that when they're godly, they will know the truth. और वो सोचते हैं कि परमेश्वर को अगर हम बड़े पवित्रता से जीवन बिताएंगे तो हमें सच्चाई मिल जाएगी और परमेश्वर को जान जाएंगे, पर वो सच्चाई को नहीं जान सकते। But the truth is the opposite. सच्चाई जो है बिल्कुल विपरीत है इससे। It is not being holy that makes us achieve the truth. Knowing the truth makes us godly. पवित्र रहने से हम सच्चाई को नहीं पा सकते, पर सच्चाई को जानने के बाद हम पवित्र रह सकते हैं। So mercy and compassion are godly traits. तो ये दया और करुणा जो है ये परमेश्वर के गुण है। So being godly means being compassionate and merciful. और पवित्र होना मतलब हम दयालु हों और कृपालु। Now some people think that the New Testament God is gracious and compassionate and merciful. Old Testament God is an angry God. He's not showing mercy at all. और कुछ लोगों का ऐसा विचार है, वो गलत धारणा है कि नए नियम का परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, कृपालु है, पर जो पुराने नियम का परमेश्वर है वो बिल्कुल दयालु नहीं है, क्रोध वाला परमेश्वर है। But that's not true at all. पर ये बिल्कुल सभी सच बात नहीं है। He is the same God. वो ही परमेश्वर है। Malachi 3:6, I the Lord do not change. मलाकी 3:6 में कहता है मैं परमेश्वर बदलता नहीं। The Old Testament God is a gracious God.
पुराने नियम का परमेश्वर भी दयालु परमेश्वर है। I'm going to give some verses from the Old Testament that confirm the graciousness of God and the love of God. और भाई अब कुछ आयतें बताएंगे जो इस बात को सत्यापित करते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम का परमेश्वर भी दयालु है और कृपा करने वाला है। You note down these verses and you can later on, you can read it in the Bible because we won't have time to read all the verses. Just note it down just for us to understand the Old Testament God is same God who is gracious, compassionate, slow to anger, abounding in love. तो कुछ आयतें हैं, अब हमारे पास समय तो इतना नहीं होगा कि सबको पढ़ें, इसलिए आप लिख लें, बाद में पढ़ें कि कैसे हमारा परमेश्वर जो पुराने नियम का परमेश्वर भी है वो कृपालु है, दयालु है, शीघ्र विलंब से क्रोध करने वाला है। Let me also give you a small suggestion how to note down verses. और आपको एक सलाह भी दे रहे हैं भाई कि किस तरह से ये जो आयतें बोली जाती हैं उनको कैसे लिखा जाना चाहिए। For example, if I say 1 Chronicles chapter 4 verse 5, और जैसे आपको कहें पहला इतिहास चौथा अध्याय उसकी 5वीं आयत, please don't write 1 Chronicles 4:5. Don't do that. तो आप ऐसे ना लिखें पहला इतिहास चौथा अध्याय उसकी 5वीं आयत। Leave some space, write 4:5 and then write 1 Chronicles. तो आप थोड़ी जगह छोड़ के पहले 4-5 लिख दीजिए, चौथा अध्याय 5वीं आयत और पहला इतिहास बाद में लिखिए। Because if you write 1 Chronicles, if you begin to write 1 Chronicles 4:5, before you finish writing Chronicles, you'll wonder, was it 4:5 or 5:4? क्योंकि अगर आप पहला इतिहास लिखना शुरू करेंगे, जब तक वो लिखना खत्म करेंगे, उस टाइम तक आप यही भूल जाएंगे कि चौथा अध्याय 5वीं आयत थी या 5वां अध्याय चौथी आयत थी। Normally the books we won't forget, but the numbers you might miss out. आप पुस्तक तो नहीं भूलेंगे, पर आप जो आयत है और अध्याय है वो हम कई बार भूल जाते हैं। Write down the chapter, the verse, then the book in the front. Then it's easy to note down when you're not listening to any message that you listen to. तो आप कहीं भी संदेश सुने तो इस तरह से लिख लिया कीजिए, पहले अध्याय और उसकी आयत और बाद में पुस्तक का नाम लिखें। I'm going to give you verses from the Old Testament that confirm the same things mentioned. He is gracious, compassionate, slow to anger, abounding in love. और ये आयतें आपको पुराने नियम से हम बताएंगे जिनको आप लिख लीजिएगा, जो सब आयतों में यही बताया कि हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। Psalm 145 verse 8. भजन 145 उसकी 8वीं आयत। Psalm 103 verse 8. भजन 103 उसकी 8वीं आयत। Psalm 86 verse 15. भजन 86 उसकी 15वीं आयत। Jonah chapter 4 verse 2. योना की पुस्तक चौथा अध्याय उसकी 2री आयत। Nehemiah chapter 9 verse 17. नहम्याह 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। Joel chapter 2 verse 13. जोएल 2रा अध्याय उसकी 13वीं आयत। Exodus 34 chapter verse 6. और निर्गमन 34वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। All these verses say the same thing. ये सारी आयतों में एक ही बात लिखी गई है, Gracious, compassionate, slow to anger, and abounding in love. कि वह दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। Even in the Old Testament, God never took pleasure in the death of wicked people or people who are committing all kinds of sins. पुराने नियम में परमेश्वर जो पुराने नियम में पुराने पापी होते थे या गलती करते थे, उनको नाश करके परमेश्वर उनसे भी खुश नहीं होता था। He took no pleasure in the death of the wicked. परमेश्वर जो है जो पापी है उसकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, Nor in the death of anybody for that matter. और किसी की भी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। Ezekiel 18 chapter 31-32. एजेकियल 18वां अध्याय उसकी 31 और 32वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Ezekiel 33 verse 11. और एजेकियल 33वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। Again, these verses talk about God does not delight to punish even wicked people, doesn't delight to punish anyone because he's the merciful, gracious, compassionate God. और उन सब में भी यही बात लिखी है कि हमारा परमेश्वर जो है पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो दयालु है, कृपालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। When they obeyed God in the Old Testament and they were blessed. जब पुराने नियम में लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, उनको आशीष मिलती थी। When they persisted in disobedience, they were cursed and the enemies came and overran them. और जब वो लगातार ढिठाई करके गलती करते रहते, पाप करते रहते थे, तो परमेश्वर उनको सजा देता था और दुश्मन उन पे आके हावी हो जाते थे। When they faced the consequences of their wrong actions, जब अपने गलतियों के परिणामों को सामना करते थे, they cried out to God for deliverance. और वो परमेश्वर को पुकारते थे छुड़ौती के लिए। God sent the prophets. परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा। When they listened to the prophets, they were blessed. जब उन्होंने नबियों की बात सुनी, उन्हें आशीष मिली। Sometime when the prophets prophesied, the people didn't like what the prophets said.
कई बार जब भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था वो जो बात सुनते थे। In fact, in the book of Isaiah, chapter 30, from verse 9, when we read, और यशायाह 30वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से अगर आगे हम पढ़ें, people are telling the prophets, don't give us visions over the right, tell us pleasant things, prophesy illusions. और वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमारे को जो है ये परमेश्वर की बात मत बता, हमारे को अच्छी-अच्छी बातें बता। Leave this way, get off this path, and stop confronting us with the Holy One of Israel. और वो ये कह रहे हैं कि हमारे को ये झूठी बातें बता के, जो परमेश्वर चिकनी चुपड़ी बातें बता के हमारे को परमेश्वर की जो बातें हैं उससे हमारे को अलग कर। Whereas God told them in the book of Isaiah, chapter 30 again, और यशायाह 30वें अध्याय में परमेश्वर उनसे जबकि ये कहते हैं in verse 15, 15वीं आयत में, in repentance and rest your salvation, and quietness is your strength. तो इजराइल का परमेश्वर पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। These people did not want to face up to God. पर ये लोग जो थे परमेश्वर के सामने उसके सामने नहीं जाना चाहते थे। They didn't want to hear about the Holy One of Israel. They wanted pleasant things, good things to massage their conscience. और वो जो है परमेश्वर की सच्ची बातों को नहीं सुनना चाहते थे, अच्छी-अच्छी बातें जिससे उनको उनके विवेक को बड़ा अच्छा लगे, वो बात सुनना चाहते थे। In Isaiah chapter 30, verse 18, the Lord is written there, और शायद 30वां अध्याय 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion. तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। He loves to show them compassion. परमेश्वर उनको दया करना में उनको उसको प्रसन्नता होती है। When he faces up to God who is holy and absolutely perfect, he reveals himself as a gracious, compassionate God. Of course, he's a holy God, but he has mercy and compassion on us. पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो परमेश्वर जो है दयालु कृपालु है, पर वो तो है, वो हम पे विलंब से क्रोध करने वाला, पर हम पे दया भी करता है, हमारे पे अनुग्रह करता है। And he expected his people also to be compassionate, even in the Old Testament. और परमेश्वर ये हमसे भी आशा रखता है, और पुराने नियम में भी ये आशा रखता था कि लोग जो है उसके लोग भी दयालु और कृपालु हों। And when the prophets are prophesying, जब नबी भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते थे, Hosea was prophesying in Israel and north along with Amos. और होशाया आमोस के साथ उत्तरी इजराइल में भविष्यवाणी कर रहा था। And the Lord told them, I desire mercy, not sacrifice. और परमेश्वर ने बोला कि मैं दया पसंद करता हूं बलिदान से भी बढ़कर। Hosea chapter 6 verse 6. होशाया की पुस्तक 6 अध्याय 6 आयत में। They're making sacrifices, they're doing so many things for God, but what God wanted is mercy for each other, compassion for each other, even in the Old Testament time. और पुराने नियम के समय में भी हम इस बात को देखते हैं कि वो बलिदान कर रहे हैं, सब कुछ कर, परमेश्वर कह रहा है मैं बलिदान से नहीं, सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होता हूं, होम बलि से अधिक चाहता हूं कि लोग दयालु हों, कृपालु हों। And this verse, Hosea 6 is quoted by Jesus in two different contexts. और यही आयत जो होशाया 6 अध्याय की 6 आयत है, ये प्रभु यीशु मसीह 2 बार इसको अलग-अलग संदर्भ में इस बात को बोलते हैं। Once was when the disciples were picking up the grains on the cornfields as they were walking along. और एक बार तो जब कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वो खेत में से तो कुछ बालियां तोड़ के उसका अन्न खाने लगे। And the Pharisees were questioning Jesus. और जो फरीसी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछने लगे। How come your disciples are doing what is wrong on the Sabbath? कि ये कैसे है कि तेरे चेले जो है सबत के दिन ये गलत काम कर रहे हैं? They're breaking the Sabbath. ये सबत को तो तोड़ रहे हैं। They questioned Jesus और यीशु मसीह से प्रश्न कर रहे हैं about the disciples. चेलों के बारे में। And Jesus said, don't you know what David and companions did? और प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम दाऊद ने और उसके साथियों ने क्या किया? When they were hungry, they ate the consecrated bread which only the priest could eat. और जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने वो रोटी खाई जो सिर्फ याजक खा सकते थे। So they were hungry and God has compassion on them. क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और परमेश्वर ने उन पर दया करी। These Pharisees were very zealous for the Old Testament law, and they were applying their judging people without having compassion. और ये जो पुराने ये जो याजक लोग थे, ये फरीसी लोग थे, ये लोग व्यवस्था को बड़ी कठोरता से मानते थे और लोगों पे दया नहीं करते थे। When the Jews when they were living, they were allowed to cut the corn from the cornfields, they walked along if they were hungry. और ये यहूदियों को ये इजाजत थी कि अगर उन्हें भूख लगी है खेत में चलते हुए किसी के, तो बाली तोड़ के खा सकते हैं। And that's why they carried knives along with them to cut the cornfields, grain. और इसलिए अपने साथ में दराती लेके चलते थे कि कभी भूख लगे तो उसमें से खा सकते हैं। And on the Sabbath day they were doing it. That's another problem the Pharisees had.
पर समस्या फरीसियों को ये थी कि ये वो सबत के दिन कर रहे थे They questioned Jesus. और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं, How come disciples are breaking the Sabbath? तेरे चेले क्यों ये सबत के दिन को उल्लंघन कर रहे हैं? Jesus says to them प्रभु about, यीशु मसीह about David and his companions, how they ate the consecrated bread in the tabernacle, which only the priest could eat. और प्रभु यीशु मसीह उनको देते थे कि जैसे उदाहरण देते हैं कि दाऊद ने उसके साथियों ने कैसे वो जो अभिषेक रोटी थी, मेज की रोटी थी, जो सिर्फ याजक खा सकता था, उसको उसने खाया। Then he tells them, go and learn the meaning of the saying, I desire mercy, not sacrifice. और फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम जाके इस बात को सीख के आओ, जिसका मतलब जो होशे में गया कि मैं जो है होम बलि से ज्यादा दया पे से प्रसन्न होता हूँ। He's quoting Hosea 6:6. Old Testament is quoting to show desire mercy, not sacrifice. Don't go by the law, go by mercy. और प्रभु यीशु मसीह ने होशे 6:6 की से उनको बात बता रहे हैं कि तुम व्यवस्था के अनुसार से मत जाओ, दया के अनुसार चलो। One more occasion, we find the same Pharisees questioning the disciples about Jesus. और एक जगह और भी प्रभु यीशु मसीह से के बारे में उसके चेलों से प्रश्न पूछ रहे हैं। The question Jesus about the disciples, or the question disciples about Jesus? पहले प्रभु यीशु मसीह से चेलों के बारे में पूछा, अब चेलों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे हैं। How come your master is eating with the tax collectors and sinners? कि कैसे है कि तुम्हारा जो स्वामी है ये पापियों के साथ और ये चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है। 9th chapter of Matthew, मत्ती उसके 9वें अध्याय में verse 10 onwards we read, this happened. 10वीं आयत से आगे हम इस घटना को पढ़ते हैं। When the Lord came to know about it, he's asking the Pharisees, और जब प्रभु को पता लगा कि ये चेलों से फरीसी लोग क्या पूछ रहे हैं, it's not the healthy who need the doctor, but the sick. और उसने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए जरूरी होता है। Go and learn the meaning of the saying, I desire mercy, not sacrifice. सो जाकर तुम इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। Again, same verse is quoting, Matthew 9 chapter verse 12. और यहाँ मत्ती 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में वही बात को वो दोहरा रहा है। Because God is merciful, he wants us to be merciful towards people. परमेश्वर दयालु है और चाहता है कि हम भी लोगों की तरफ दयालु हों। We can be very, very rigid and very, very self-righteous and try to judge people based on the word of God itself. और हम जो है बड़े ढीठ और बड़े कट्टर हो सकते हैं और लोगों का न्याय करने लगते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही। But according to James chapter 2 verse 13, और याकूब 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत के अनुसार हम पढ़ते हैं mercy triumphs over judgment. कि दया जो है वो न्याय से जयवंत होती है। God values mercy towards each other than judging each other. परमेश्वर दया को ज्यादा उसको आदर देता है बनिस्बत इसके कि हम उस किसी का न्याय करें। And therefore, we should understand the heart of God, that while we are very strict with ourselves, we should be merciful towards others. और हम जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं तो हमारे को इसको सीखना चाहिए कि हम अपने साथ जब सख्त रहते हैं पर हमें दूसरों पे दया करनी है। We're all called to live a holy life, no doubt about it. हम सबको बुलाया गया कि एक पवित्र जीवन जिए, इसमें कोई शक नहीं है। And one danger in holiness is that we are so holy that we look at other people in a very judgmental way. और ये अपने आप को पवित्र रखने के बाद में एक बड़ा खतरा हो जाता है कि हम दूसरों को इतने पवित्र समझने लगते हैं अपने आप को कि हम दूसरों को न्याय करने लगते हैं उनका। Ecclesiastes 7 chapter verse 16 says, और सुपदेशक 11वां अध्याय उसकी 7वां अध्याय 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, do not be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? वो कहता है अपने आप को बहुत धर्मी ना बना, ना अपने आप को बहुत बुद्धिमान बना, क्यों तू अपना नाश करने का कारण बनता है। Now, it's very important to understand that while we are very strict with ourselves, we should be compassionate with others. और ये बहुत जरूरी है सीखना कि जब अपने साथ हम बड़े कठोर रहते हैं, अपने आप को बड़े अनुशासन में रखते हैं, हमें दूसरों पे बड़ी दया करनी है। For example, the Apostle Paul was very strict with himself. उदाहरण के लिए हम पौलुस को देखते हैं कि वो अपने लिए बड़ा सख्त था। He was impatient with his own sins, to come out of his own sins. और उसको वो अधीर हो रहा था कि कैसे अपने पापों से कैसे बाहर निकले जल्दी से जल्दी। The last few verses of Romans chapter 7 we read, और रोमियो के 7वें अध्याय की आखिरी कुछ आयतों में हम पढ़ते हैं that Paul talks about his own struggle with sin. जहां वो पौलुस अपने पाप के से उसके जो झगड़ा बड़ा उसका जो वो चल रहा है, जद्दोजहद चल रही है, उसके बारे में बताता है। What I want to do, I'm not able to do. What I don't want to do, I'm doing. कहता जो मैं करना चाहता हूँ नहीं करता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो करता हूँ। Very simple, don't want to do, I'm good at doing. और जो नहीं करना चाहिए उसको मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। What a wretched man I am. Who will rescue me from the body of death? कहता मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। But thanks be to God, to Jesus Christ our Lord.
पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। There we see the impatience he had with his own sins. He had a passion to come out of sin and please God. और यहाँ हम देखते हैं कि उसके अंदर बड़ा अधीर था है, उसमें धैर्य नहीं है कि कैसे पाप से निकल के आए और परमेश्वर को प्रसन्न करने लगे। When it came to other people, he was a compassionate person. और जब दूसरे लोगों की बात आती है तो वो बड़ा दयालु व्यक्ति था। In 1 Thessalonians chapter 2, 10, 11, 12. पहला थिस्सलुनीय दूसरा अध्याय 10, 11, 12 में हम पढ़ते हैं। The beautiful passage it is. बड़ा सुंदर भाग है। Writing to the Thessalonians and saying, वो थिस्सलुनियों को लिखते हुए बोलता है, you are witnesses and so is God तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी, of how holy, righteous and blameless we are among you who believed. कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हैं हम कैसे पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। Or we dealt with each of you as a father deals with own children. जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बच्चों से बर्ताव करता है, वैसे ही हमने तुमसे हर एक के साथ ऐसा ही किया। Encouraging, comforting, urging you to live lives worthy of God. कि एक ही उपदेश करते, शांति देते और समझाते थे। To Corinthians he wrote about how even though you have many guardians in Christ, you don't have many fathers. और वो कह रहा है कि जब तुम्हारे पास तुम बालक थे, जब तुम्हारे पास कोई पिता नहीं था, तुम्हारे लिए हम पिता की तरह तुम्हारे साथ रहे। To Corinthians he wrote that. To Corinthians. कुरिन्थियों को लिखते समय वो ऐसा बोलता है। You have 10,000 guardians in Christ, but you don't have many fathers. I became a father to you through the gospel. तुम्हारे पास तुम्हारी देखभाल करने के लिए तो 1000 लोग हैं, पर तुम्हारे पास कुछ पिता नहीं है। मैं तुम्हारा आत्मिक पिता मैं बना तुम्हारा। In other words, as a father, his own children, encouraging, comforting, urging to live lives worthy of God. और जैसे पिता है उनको वो जो समझा रहा है, उनको बुझा रहा है कि कैसे पवित्रता का एक जीवन बिता सकें। We are called to be very strict with ourselves and merciful towards others. हमें बुलाया गया कि हम अपने साथ तो बड़ा अनुशासन रखें, पर दूसरों के लिए बड़े दयालु हों। In English, we say double standards. और इंग्लिश में कहते हैं कि दो तरीके का हिसाब किताब रखना। There is saying that don't have double standards. जबकि बोला जाता है कि भैया दो तरीके का आदमी नहीं होना चाहिए। And what we mean by that is, don't be, very strict with other people, and with yourself be very lenient. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ तो अनुशासन में रहें, पर दूसरों के ऊपर बड़े दयालु रहें और उनके साथ बड़ा नम्रता से बर्ताव करें। The double standard that we should not have is very strict with other people and very lenient with ourselves. और जो दो हिसाब हमारे पास नहीं होना चाहिए थे कि अपने साथ तो हम बड़े सख्त रहें और दूसरों के ऊपर दयालु करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। With others we should be very compassionate, with ourselves very strict. That's what I said first. Okay, it's the other way around, brother. We should not be strict with others and be compassionate with ourselves. हाँ, हमारे को अब दूसरों के साथ सख्त हो जाना और अपने लिए नम्र हो जाना ऐसा नहीं होना चाहिए। We should be very strict with ourselves and compassionate with other people. बल्कि हमें अपने को तो अनुशासन में रखना है, सख्त रहना है, पर दूसरों पे हमारे को बहुत दयालु होना चाहिए। So this kind of double standard we should have. Be strict with yourself and compassionate with other people. तो ये हमारे पास ऐसा दो चित्ता हिसाब होना चाहिए कि हम अपने लिए सख्त रहें, दूसरों के लिए नम्र रहें। We can be very judgmental with ourselves. We should judge ourselves when we commit sin and don't continue in sin. But with other people, be patient and compassionate. और हमें अपना बड़ा, जब हम गलती करते हैं तो हमारे को बिल्कुल अपने ऊपर न्याय करना चाहिए और उसको सख्ती से निपटाना चाहिए, पर जब दूसरे कोई करते हैं तो हमारे को नम्रता से, दया से उनसे बर्ताव करना चाहिए। Now, how does compassion come? It comes from God. तो ये दया कैसे आती है? ये परमेश्वर की ओर से आती है। If you look at Colossians chapter 3, verse 12, we read, कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, the Apostle Paul writes to the church in Colossae, he says, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई पवित्र, प्रिय और बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। Clothe yourself with compassion. और कहता है यदि किसी एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ बर्ताव करो। 13th verse says, bear with each other and forgive whatever grievances you have against each other. और 13वीं आयत में कहता है यदि किसी पर दोष करने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को के अपराधों को क्षमा करो। Forgive as the Lord forgave you. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। So bearing with each other basically means that you're patient, compassionate, and merciful, and that comes from God in a relationship with God. और जब हम दया करते हैं इसका मतलब हम करुणा करते हैं, भलाई करते हैं, नम्रता करते हैं, और ये सब जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। Now, the Lord Jesus Christ, when he walked this earth, और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, when he went to all the towns of Galilee and different parts when he ministered,
और वो जब गलीली के दूसरे शहरों में और भी अलग अलग जगह पे जहाँ सेवकाई करने के लिए गए, 9th chapter of Matthew, verse 36 to 38 we read, मत्ती 9वां अध्याय 36 से 37 की आयत में हम पढ़ते हैं, he saw the crowds, उसने भीड़ को देखा he saw the crowds, he had compassion on them. और उन लोगों पर तरस आया, Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना था, व्याकुल और भटके हुए से थे। Along with him were the disciples. और तब उसके साथ चेले भी थे उनके। They all saw the same crowds. सबने उस भीड़ को देखा। When the Lord saw the crowds, he had compassion on them. पर जब प्रभु ने देखा तो उनको उस पर दया आई। Others did not have the same compassion. पर जब और बाकियों को वो दया उनके अंदर नहीं थी। The Lord tells the disciples, the harvest is plentiful, the laborers are few. और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। And he tells the disciples, और अपने चेलों से कहते हैं, pray the Lord of the harvest will send laborers to the harvest field. इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। He had compassion. They didn't have compassion. Both saw the same crowds. दोनों ने उसी भीड़ को देखा, एक ही भीड़ को देखा, पर प्रभु यीशु मसीह को दया आई, बाकियों को दया नहीं आई। And the Lord makes them pray to the Father of the harvest and to send laborers. और प्रभु उनको मजबूर करते हैं कि वो प्रार्थना करें कि प्रभु जो है सेवकों को काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। And they must have prayed. और उन्होंने प्रार्थना की होगी। After they pray, whom does God send as laborers? और जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु किसको मजदूर की तरह बना के भेजते हैं? The same disciples who prayed. वही चेले जिन्होंने प्रार्थना करी थी। 10th chapter talks about the commissioning Jesus gave to the same disciples to heal the sick, raise the dead, cast out demons and cleanse those who are leprosy. और फिर प्रभु जो इन्हीं 12 को जो अब 10वें अध्याय में हम देखते हैं उनको ऊपर उनको अभिषेक करते हैं और अशुद्ध आत्मा निकालने के लिए, बीमारियों को चंगा करने के लिए, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उनको अभिषेक करते हैं। Matthew chapter 10 verse 8. मत्ती 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। So they had compassion because they had spent time with the Lord in prayer, and that compassion must have come to them in the ministry by the love of God. और जब उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु ने उनका अभिषेक किया और जो आत्मा प्रभु के जो दया प्रभु में थी वो इन लोगों में भी आ गई। This mercy and compassion is a product of walking closely with God. और ये जो हम दया और कृपा हमारे अंदर तब आती है जब हम प्रभु के साथ लगातार नजदीकी से चलते हैं। As we grow in the knowledge of God, with the God who is the personification of love, will manifest love, and mercy and compassion are offshoots of love. और जब प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारा प्रभु जो प्रगटीकरण है दया का वो हमारे अंदर आता है और ये दया और कृपा जो है ये प्रेम का ही एक उसका ही उसी का फल है। So sometimes when we walk in holiness, we are so holy, so caught up with righteous acts that we forget to be compassionate to people. और हम जब पवित्रता में जीवन बिताते हैं तो हम इतने अपने आप को इतना उसमें ऐसे हो जाते हैं कि हम जो है दया करना भूल जाते हैं। But if we grow in the knowledge of God, we'll have the love of God. जब प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भी बढ़ता है। Very often I quote this verse from Jesus' prayer to the Father in heaven. और बहुत दफे भाई इस बात को बताते हैं जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से करी। John 17:26. यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में It tells the Father, I have made you known to them, and I will continue making you known to them, that the love you have for me will be in them, and I myself will be in them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। As you grow in the knowledge of God, we'll be spontaneously loving people and be compassionate, merciful towards people. जब हम परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे तो हम स्वाभाविक रीति से जो है हमारे अंदर दया होगी, लोगों पे हम कृपा करेंगे। There's not an effort, it comes naturally. इसमें कोई प्रयास करने की बात नहीं है, ये स्वाभाविक रीति से आएगा। Because it comes from a relationship with the Father who is a personification of love. क्योंकि ये हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है जो कि प्रेम का स्वरूप है उसके द्वारा से हमारे अंदर भी आता है। But there are some people who know they should be merciful, but they're merciful not cheerfully, but being proud about being merciful. और कुछ लोग जो है दयालु तो होते हैं पर वो दयालुपन करके दयालुता दिखा के घमंड करते हैं, उसमें उसको उनको ऊपर उसके नम्र दया से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, उन पर घमंड करते हैं इस बात पे। As if they say, I'm merciful towards you because you say I'm so merciful. They're proud about being merciful. कि देखो मैं तुम पे दया कर रहा हूं, मैं और इस बात पे वो बड़ा घमंड करते हैं, देखो मैं तुम पे दया कर रहा हूं। I could have punished you, I would have judged you, but I'm merciful. Therefore I'm nice to you.
मैं तुम्हें सजा दे सकता था, तुम्हारे को नुकसान पहुंचा सकता था, पर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, मैं तुम्हारे पे बड़ा दया दिखाई है मैंने। In a way, they're proud of being merciful. एक तरीके से वो दया दिखा के घमंड कर रहे हैं। Now, if you look at Romans 12:8, it says, अगर हम रोमियो 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ें, person's gift is showing mercy, let him do it cheerfully. कि जो दया करे वह हर्ष से करे। You must enjoy being merciful, not being merciful because it's a command of God. और ये हमें हर्ष से करना है, दया को हर्ष से दिखाना है, इसलिए नहीं करना कि परमेश्वर की आज्ञा है ये। That can only happen through an intimate, close walk with God. और ये तब होगा जब हम परमेश्वर के साथ बड़ी नजदीकी से साथ लगातार चलते रहेंगे। Today, the Holy Spirit pours out the love of God into our hearts. अभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अपने प्रेम को हमारे अंदर भर देता है। He makes us more and more like Jesus. हमारे को प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलता चला जाता है। 2 Corinthians 3rd chapter 18 says he makes us more and more like Jesus. दूसरा कुरिन्थियों 33वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि वो हम उसकी समानता में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And may have that mercy and compassion, will interact with everybody and not have preferences. और जब हमारे अंदर ये होगा, परमेश्वर का स्वरूप होगा, तो हम सबके साथ वही दया करेंगे, हम उसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे। The Lord hated tax collectors and sinners. प्रभु यीशु मसीह ने तो चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, उनसे भी प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया। Knowing fully well, the Pharisees will criticize him. They criticize him to the disciples. और ये जानते हुए कि ये फरीसी लोग हैं, उसकी बुराई करेंगे और उसके चेलों की, फिर भी वो उनसे प्रेम किया। And he said very clearly, it's only the healthy don't need the doctor, only the sick need the doctor. और प्रभु ने उनको कह दिया, जो बीमार हैं उनको डॉक्टर की जरूरत होती है, जो सही है, स्वस्थ हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। So tax collectors and sinners need healing. जो चुंगी लेने वाले हैं, पापी हैं, इनको चंगाई की जरूरत है। They need spiritual healing. इनको आत्मिक चंगाई की जरूरत है। Physical healing, you go to doctor. Spiritual healing, you have to go to people who can have the gift of dealing with the spiritual problem by pointing to Jesus. जब हम बीमार होते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, और जब हम आत्मिक रीति से बीमार होते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के पास जाना होता है जिनके परमेश्वर ने दान दिया है कि वो हमारे को उस चीज में हमारी मदद कर सके, चंगाई दे सके उस चीज। It's in that context the Lord tells them, go and learn the meaning of the saying, I desire mercy, not sacrifice. और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाके सीखो कि मैं होम बलि नहीं पर दया से प्रसन्न होता हूँ। Mind you, it's Old Testament. और जबकि ये बात पुराने नियम की बात है। Hosea 6:6, he desires mercy in those days. होशे 6:6 में प्रभु ने उस समय बोला कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। Well, he is a merciful God. क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो दयालु परमेश्वर है। And all of us should be merciful and be merciful to others cheerfully, be compassionate cheerfully, not with a righteous attitude. और हम सबको भी इसलिए दयालु होना है, और ये जो दयालुपन हमें दिखाना है, ये हर्ष से करना है, किसी मजबूरी से, जोर से नहीं करना। This is a gift of God. ये परमेश्वर का दान है। And every gift is received, is not earned. और हर एक दान जो है वो हमें स्वीकार करना होता है, वो हम कमा नहीं सकते। When I ask God for this gift, He's pleased to give it to us because He knows we're asking it only for other people, not for ourselves. और हम परमेश्वर से जब मांगते हैं इस दान को, दया का, तो परमेश्वर बड़ी खुशी से देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, दूसरों को देने के लिए मांग रहे हैं। The gift of mercy benefits other people. जो दया का जो दान है, इससे दूसरों लोगों को भलाई फायदा होता है। The gift of encouragement is meant for other people. और ये प्रोत्साहन का दान जो है वो भी दूसरे लोगों के लिए है। Sometimes the gift of miraculous powers working and also gifts of healing can be a selfish motive for me to become very popular. Oh, I have gifts of healing. When I pray, people get healed. There could be a pride in that. और ये जो चंगाई का दान है, ये भी इसमें बड़ा घमंड आ सकता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ लोग चंगे हो जाते हैं, और इसमें लोग घमंड करने लगते हैं। Now, if you look at the letter of Paul to Corinthians, 1 Corinthians 12 chapter, 8 to 10, 9 gifts of Holy Spirit are mentioned. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से 9 में हम पढ़ते हैं, वहां पे 9 दानों के बारे में बताया गया है। And they are all very good gifts. Every gift of God is good. और हर एक दान जो है वो बड़ा परमेश्वर की ओर से वो अच्छा दान है। But you must have the wisdom to use the gifts in a way that pleases God. और हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है कि उस दान को हम ऐसे प्रयोग करें कि परमेश्वर उससे फायदा हो लोगों को। Every gift of God is to be used to glorify the name of Jesus and build up people. हर एक परमेश्वर का दान जो है वो हमारे को ऐसे प्रयोग करना है कि परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी हो, लोगों की बढ़ोतरी हो। When you have the gift of showing mercy, जब हमारे पास ये दान आ जाता है कि हम दया दिखाएं, no doubt it blesses people who are recipients of this mercy.
और जिन लोगों को ये ये दान मिलता है दया का, वो बड़े आशीषित लोग हैं। but also it must glorify the Lord. और उनको उनको आशीष तो मिलती है, पर साथ साथ हमें प्रभु को भी महिमा देनी है। Because sometimes when you are very, very merciful, everyone appreciates your being merciful and we can take credit for ourselves. क्योंकि जब आप दया करेंगे सब लोग कहेंगे बड़ा दयालु है, और उसके लिए हम जो है उसका सारा जो है श्रेय अपने ऊपर ले लेंगे हम। You have to very clearly say this mercy is a gift of God. He is merciful to me. He wants me to be merciful to others. Only He can enable me to be merciful. हमें बोलना है कि ये तो परमेश्वर का दान मुझे मिला है, दान दया का, वो मुझ पे दयालु था इसलिए मैं भी दूसरों पे दयालु हूँ, और ये तो परमेश्वर की ओर से है। In the ministry, everything we do or say must glorify the name of Jesus and build up people. It's not about us, not glory for us at all. हम जो भी सेवकाई में हैं, हमारे को ये देखना है कि हम जो भी करें वो परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हो, वो अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। One day when you go to heaven, you receive reward from God Himself. जब हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन, तो वहां परमेश्वर से हमारे को उसका इनाम मिलेगा। In this world, don't seek honor from people and don't seek to pull anyone down, build them up. और इस संसार में जब हैं, तो आप लोगों की बड़ाई के लिए कोई काम ना करें, लोगों को गिराने के लिए उसको ऐसा कोई भी काम ना करें। Our reward is God Himself. हमारा इनाम तो परमेश्वर खुद है। In John 12:26, the Lord gave a very simple instruction to all His servants. और यूहन्ना 12:26 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बिल्कुल सीधी-सीधी आज्ञा दी। Whoever serves me must honor me, must follow me. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant will be. जो कोई मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। My Father will honor the one who serves me. जो कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। We're all servants of God in various capacities. हम परमेश्वर के सेवक हैं अलग-अलग चीजों में। One day the Father Himself will honor us. पर एक दिन आएगा जब पिता खुद हमारा आदर करेगा। Don't seek honor from people, don't seek honor from churches, from fellowships. Simply live to please God, and one day we'll all receive our reward from God. लोगों से, कलीसिया से आदर पाने के प्रयास में ना रहें, हम परमेश्वर की सेवा करते रहें, और एक दिन प्रभु ही हमारा आदर करेंगे। If you look at the 11th chapter of Hebrews, अगर हम इब्रानियों के 11वें अध्याय को देखें, we read about so many people who did wonderful things all by faith. हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में सिर्फ विश्वास से उन्होंने कितनी चीजें पाई। The last two verses of that chapter record, और उस अध्याय की आखिरी 2 आयतें हैं, उसमें ऐसा लिखा है, they were all commended for their faith. उन सबको उनके विश्वास के विषय में उनकी अच्छी गवाही दी गई, But none of them received what had been promised. और तो भी उस प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली उन्हें। God plans something better for us, that along with us they'll be made perfect. Made perfect means made complete. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारी सिद्धता को ना कि वे हमारी बिना सिद्धता को ना पहुंचे, वो ये उसके द्वारा से है। One day they're going to be reward for all of us together. एक दिन हम सबको इनाम मिलेगा। Let's seek that, not seek honor from people here. तो हम उस आदर की बाट में जो हैं, और ये संसार के लोगों की से आदर पाने की इच्छा में ना रहें। So please ask God for the gift of showing mercy. When God gives it to you, do it cheerfully, not grudgingly. तो परमेश्वर से आप दया के लिए दया का दान मांगे, और जब परमेश्वर आपको दे दया, तो आप इसको हर्ष से करें, इसको किसी जोर जबरदस्ती से ना करें। It pleases God that we ask Him for this gift. और परमेश्वर को बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम इस दान को मांगते हैं। The will of God that we have this gift, therefore you can be sure when you ask Him, He will give it to you. और क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में है, तो आप इसको निश्चय मान लीजिए, जब परमेश्वर से आप इस चीज को मांगेंगे तो वो जरूर आपको देंगे। May God bless each one of us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।